وہ نکل کر اپنے دستور کے مطابق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور وہ ان سے جدا ہو کر تطمیناً پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے ہوئے کہنے لگا، اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور آسمان سے ایک فرشتہ اسے دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ پھر وہ بحالت جان کنی اور بھی سرگرمی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ خون کی موٹی موٹی بوندوں کی مانند ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ جب وہ دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو ان کو غم کی وجہ سے سوتے پایا، اور ان سے کہا، تم کیوں سوتے ہو؟ اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک ہجوم آیا، اور ان 12 میں سے جو یہودا کہلاتا تھا ان کے آگے آگے تھا، اور یسوع کے پاس آیا اس کو چومے۔ تب یسوع نے اس سے کہا، اے یہودا، کیا تو اتنے انسان کو بوسہ دے کر بلواتا ہے؟ جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے لگا ہے تو کہا، اے خداوند، کیا ہم تلوار چلائیں؟ اور ان میں سے ایک نے سردار کاہن کے غلام پر تلوار چلائی اور اس کا دہنا کان اڑا دیا۔ تب یسوع نے جواب میں کہا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے کان کو چھو کر بحال کیا۔ اور پھر یسوع نے سردار کاہنوں اور ہیکل کے سرداروں اور مزدوروں کو جو اس پر چڑھ آئے تھے کہا، کیا تم مجھے گویا ڈاکو پکڑنے کو تلواریں اور لاٹیاں لے کر نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا اور تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا، لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے۔ پھر اس کو گرفتار کر کر لے چلے اور سردار کاہن کے گھر میں لے گئے، اور پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ اور جب انہوں نے آگ جلائی اور چوگٹ بیٹھے تو پترس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا، اور ایک لولی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی اور کہا، یہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ مگر اس نے انکار کر کے کہا، بیوی میں اسے نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر بعد کسی اور نے دیکھ کر اس سے کہا کہ تو بھی انہی میں سے ہے، مگر پترس نے کہا، میاں میں نہیں ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کسی اور نے یقینی طور سے کہا، بے شک یہ آدمی اس کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ گلیلی ہے۔ پترس نے کہا، میاں میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ اسی دم جب وہ کہہ ہی رہا تھا وہ نے بات کی، تب خداوند نے مڑ کر پترس پر نگاہ کی، اور پترس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی، آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ اور جو آدمی اسے گرفتار کیے ہوئے تھے اس کو ٹھٹے میں اڑاتے اور مارتے تھے، اور اس کی آنکھیں بند کر کے پوچھتے تھے، ثبوت سے بتا کس نے تجھے مارا۔ اور تانے مار مار کر بہت سی اور باتیں اور اس کے خلاف کی۔ اور جب یہ ہوا تو قوم کے بزرگ یعنی سردار کاہن اور فقیہ جمع ہوئے اور اسے اپنے عدالت عالیہ میں لائے اور کہا، اگر تو المسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ اس نے ان سے کہا، اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہیں کرو گے، اور اگر پوچھوں تو جواب نہ دو گے، مگر اب سے یہ انسان خدائے قادر کی دائیں طرف بیٹھا رہے گا۔ اس پر ان سب نے کہا، کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے ان سے کہا، تم خود ہی کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ تب انہوں نے کہا، اب ہمیں گواہی کی کیا ضرورت، کیونکہ ہم نے خود ہی اس کے منہ سے سن لیا ہے۔ تب وہ سب کے سب اٹھ کر اسے پلاطس کے پاس لے گئے اور اس پر یہ کہہ کر الزام لگانا شروع کیا، ہم نے عقیق کی کہ یہ ہماری قوم کو بہکاتا ہے اور کیسر کو خراب دینے سے منع کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتا ہے۔ تب پلاطس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے اس کے جواب میں کہا، تو خود کہتا ہے۔ تب پلاطس نے سردار کاہنوں اور عوام سے کہا، میں شخص میں کوئی قصور نہیں پاتا۔ مگر انہوں نے اور بھی زور دے کر کہا، یہ تمام یہودیوں میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک کی رعیت کو
काका उगाता है। पिलातुस ने ये सुनकर पूछा, क्या ये आदमी जलीली है? जब उसे ये मालूम हुआ कि हेरोदेस की अमलदारी का है, तो उसे हेरोदेस के पास भेजा, क्योंकि वो यीशु में था। हेरोदेस यीशु को देखकर नहायत खुश हुआ, क्योंकि उस बात के सबब से जो उसने उसकी बाबत सुनी थी, उससे मुद्दत से शौक था कि उसे देखे। उससे उम्मीद भी थी कि उससे कोई निशान सरजद होगा देखे, और वो उससे बेहतरी बातें पूछता रहा, मगर उसने उससे खुद जवाब न दिया। और सरदारगाही और बतिया खड़े बड़ी तादाद सिद्धों में उस पर इल्जाम लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपनी फौज के इसे जमीन किया और कट्ठे में बुलाया और चमकीली पोशाक पहना कर उसको पिलातुस के पास वापस भेजा। और उसी दिन हेरोदेस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। और पिलातुस ने सरदारगाहियों और लश्करी सरदारों और अवाम को जमा करके उनसे कहा, तुम इस शख्स को मेरे पास ये कहते हुए लाए कि लोगों को बहकाता है। देखो, मैंने तुम्हारे सामने तहकीकात की, मगर इन इल्ज़ामों में से जो तुम इस पर लगाते हो, उनकी निस्बत ना मैंने इस शख्स में कुछ पाया और ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने इसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो, इससे कोई ऐसा माल नहीं हुआ जिससे कत्ल के लायक ठहरता, बस मैं इसे पकड़वा कर छोड़ दूंगा। किसी पे जरूर था कि किसी को उनकी खातिर छोड़ दे, वो सब मिलकर चिल्ला उठे, इसे ले जा और हमारी कातिल बराबा को छोड़ दे। ये किसी फसाद के लिए जो शहर में हुआ था और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था। मगर पिलातुस इस इरादे से कि यीशु को छोड़ दे उनसे दोबारा कहा, पर वो यूं कहकर चिल्लाते रहे, इसे सलीब दे, सलीब दे। तीसरी बार उसने उनसे कहा, उसने क्या बदी की है? मैं इसमें कत्ल के लायक कोई कसूर नहीं पाया, इसलिए मैं इसे पकड़वा कर छोड़ दूंगा। मगर वो चिल्ला कर इसरार करके तलब करते रहे, इसे सलीब दे जाए। और उनका चिल्लाना और सरदारगाही कामयाब हुए। तब पिलातुस ने हुक्म दिया इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो, और उसने उस शख्स को छोड़ दिया जो फसाद और खून की वजह से मुक्ति था और जिसे उन्होंने मांगा था, और यीशु को उसने उनकी मर्जी के हवाले किया। और जब उसने उसको ये जाते थे तो उन्होंने शमौन नामी एक गिरवानी को पकड़ा जो खेत से आ रहा था, और सलीब उस पर रख दी और यीशु के पीछे पीछे उठा ले चला। और लोगों का एक बड़ा हजूम और औरतें जो उसके वास्ते छाती पीटती और रो रही थी, उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर ना रो, बल्कि अपने आप पर रो और अपने बच्चों पर, क्योंकि देखो वो दिन आएंगे जिनमें कहेंगे, मुबारक हैं भांजे और वो रहम जो बावर ना हुए, और वो शादियां जिन्होंने दूध ना पिलाया। तब वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे, हम पर गिर पड़ो और पीरसों के हमें छुपाओ, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे के साथ क्या न किया जाएगा। और दो और जो बदकार थे उसके साथ लिए जा रहे थे ताकि कत्ल किए जाएं। और जब वो उस मुकाम पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहाँ उसे सलीब दी और उन बदकारों को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप उनको माफ कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़े बांटने के लिए कूड़ा डाला। लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी जो ठट्ठे मार मार कर कहते थे, उसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मकबूल अल मसीह है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर और उसे सिरका देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी और अब्रानी बोल में एक किताबा लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। और उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे उससे ताना देकर बोला, क्या तू अल मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अभी खुदा से नहीं डरता, हालांकि इसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं। मगर उसने
कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और छठी घड़ी के करीब था कि सारे मुल्क में अंधेरा छा गया, जो नामी घड़ी तक रहा, क्योंकि सूरज तारीक हो गया था और हैकल का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर उसने जान दे दी। और जो कुछ हुआ था, जब सूबेदार ने वो देखा तो खुदा की तस्जीद की और कहा, बेशक ये शख्स रास्तबाज था। और जितने लोग इस नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, जब जो कुछ हुआ था देखा तो छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो जलील से उसके पीछे पीछे हो रही थी, दूर खड़ी होकर ये बातें देख रही थी। और देखो, यूसुफ नामी एक शख्स जो मुशीर था वो मर्दे नेक और राहत, वो उनकी राय और अमल में शरीक ना हुआ था। वो यहूदियों के शहर रामा और खुद खुदा की बादशाही का मंसूर था। उसने पलटू के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और उसे उतार कर दुकानी चादर में कपनाया और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी, जहाँ कभी कोई रखा ना गया था। वो तहैये का दिन था और सब्त शुरू होने को था। और वो औरतें जो उसके साथ जलील आई थी पीछे पीछे चली और उस कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लाश किस तरीके से रखी गई है। और लौट कर उन्होंने खुशबूदार चीज़ें और इतर तैयार किया और उन्होंने हुक्म के मुताबिक सब्त के दिन आराम किया। तकबीर के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदा में मेरे जीजो, आज से कलीसिया पाक हफ्ते का आगाज करती है। रोज़ों के मौसम में इस हफ्ते को रोज़ों के मौसम का अरूज कहा जाता है। और आज क्योंकि खजूरों के इतवार के साथ जो है पाक हफ्ते का कलीसिया जो है वो आगाज करती है। खजूरों के इतवार को मनाने का जो सिलसिला है वो तीसरी सदी के आखिर में हुआ। कौन सी सदी में? तीसरी सदी के आखिर में। यानी खजूरों के इतवार की इबादत जो है उससे पहले 3 सदियों तक नहीं मनाई जा रही। तो जो इसका आगाज हुआ वो तीसरी सदी के आखिर में। और जब वो जो मसीही थे वो यरूशलेम में वो वहाँ पर जो है इकट्ठे होते और वो करते क्या थे? गीत गाते, दुआएं करते, पैगाम होता। वो दोपहर को ये शुरू करते और शाम तक। और आखिर में जो वो जाते उन मुकद्दस जगहों पर, जो शहर में जो मुकद्दस जगह हैं जहाँ यीशु गया, जहाँ यीशु ने जहाँ यीशु ने जो है वो बातचीत की है या जहाँ यीशु ने मौजज़ा किए हैं, तो जो उनको मुकद्दस जगह पता थी वो वहाँ पर जाते। तो तब इस तरह जो है उन्होंने इस जो इबादत का जो उन्होंने आगाज किया। ये 6ठी सदी में आकर टहनियों को बरकत देने की रस्म का आगाज हुआ। तो इसका मतलब उससे पहले टहनियाँ वो लाते थे लेकिन बरकत वाली रस्म नहीं थी। ये 6ठी सदी में हुआ जब बरकत की रस्म जो है वो जो है उसको इसका हिस्सा बनाया गया। 8वीं सदी में ये इबादत पूरी दुनिया में फैल गई। पहले पूरी कलीसिया दुनिया में जहाँ थी, ये पूरी दुनिया में ये इबादत फैल गई। और फिर जो है
इस इबादत को जो नाम दिया गया, जो आज हम कहते हैं खजूरों का इतवार, क्या नाम दिया गया? खजूरों का इतवार। और इसके बाद दूसरे नाम भी दिए गए जिसपे दुखों का इतवार कहा, अजियत का इतवार कहा गया, इसको जो है वो नाम दिया। तो जो दुखों का इतवार, इस इतवार से पाक हफ्ते का आगाज होता है। पोप बेनेडिक्ट, ये पोप बेनेडिक्ट 16वां जो है वो कहते हैं 2011 में इन्होंने कहा पाक हफ्ता जो है रोजों के मौसम का रूज है। तो इसका मतलब जिस मौसम में से हम रात के बुध से गुजर रहे हैं अब उसका रूज आ गया है। रूज क्यों ना, ये बातें फर्क हैं। क्यों फर्क है? क्योंकि इस बातों में हम उसी तरह हिस्सा लेते हैं जिस तरह उस वक्त लोगों ने लिया। उस वक्त उन्होंने टहनियां पकड़ी और नारे लगाए, हमने टहनियां पकड़ी, हम आए, लेकिन नारे नहीं सन लगाए। वो तो बस फटाफट ऐसी कि जगह लग जाए, नारे नहीं सन लगाए। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है वो टहनियां पकड़ते और नारे लगाते, इस तरह हम उसी तरह करते हैं ताकि हम यीशु के साथ चलते हैं, उसके साथ उसका शहाना दाखिला यरूशलेम में। इसलिए जो स्कॉलर है कि जब बादशाह जीत कर यरूशलेम में आते थे, जब उनका दाखिला होता था तो वो जीत मनाते थे, लेकिन यीशु का दाखिला होता है क्योंकि उसने मरना है, अपने लोगों के लिए उसने मरना है। इसलिए जब बाहर से आते हैं तो जो इबादत का जो अंदाज है वो बड़ा खुशी का, नारे लगाने का। लेकिन जैसे चर्च के अंदर दाखिल होते हैं, तलावतें शुरू होती हैं, तो कौन से जो है वो अंजील में जो है दुखों का बयान पढ़ा जाता है, उसके साथ ही माहौल इसकी तरफ आ जाता है, दुखी माहौल। क्यों? क्योंकि यीशु यरूशलेम में शहाना अंदाज में दाखिल होता है, किस लिए? ताकि वो अपने लोगों के लिए जान दे। इसलिए बिशप फुल्टन जे उसने लिखा अपनी किताब में, वो लिखता है कि हर बच्चा दुनिया में पैदा होता है जिंदा रहने के लिए, मगर यीशु पैदा होता है मरने के लिए। हर बादशाह जो है अपने लोगों के दरमियान जब आता है जीत को मनाने के लिए, लेकिन ये बादशाह जो है जब दाखिल होता है अपने लोगों के दरमियान या अपने शहर में, मुकद्दस शहर में मरने के लिए। और ये जो खजूरों की टहनियां हैं, इनकी इसको मुख्तलिफ अलामतें दी गई हैं, क्योंकि जो स्कॉलर हैं वो बहुत सारी अलामतों से उस वक्त जब खजूरों की टहनियां लेके आते और बादशाह कोई भी आता तो जब खजूरों की लोग टहनियां पकड़ उसकी कामयाबी मनाते थे। तो अगर खजूरों की टहनियां नजर आ रही हैं, इसका मतलब जो बादशाह आ रहा है वो क्या होके आया है? कामयाब होके आया है। क्या होके आया है? जहां भी वो जंग के लिए गया है वहां से वो जीत के आया है, वो हार के नहीं आया। तो इसलिए जो है एक मतलब ये, दूसरा जो इसको कहा जाता है शहादत की अलामत, नए अहदनामे में जो है इसको शहादत की अलामत। फिर कुछ स्कॉलर इसको जन्नत की अलामत भी कहते हैं, ये जो टहनियां है, और कुछ स्कॉलर कहते हैं ये जी उठने की अलामत है, ये टहनियां जो है जो जिंदा यीशु की अलामत है। और जब भी बादशाह दाखिल होता था, जो जीत के आता था, वो कभी भी गधी के बच्चे पे नहीं आता था, वो किस पे बैठ के आता था? घोड़े पे ना, क्योंकि जो है ये अलामत थी ना, तो वो कभी भी गधी के बच्चे पे बादशाह बैठ के नहीं आता था। लेकिन ये बादशाह किस पे बैठ के आता है? गधी के बच्चे पर। गधी के बच्चे जो है ये हलीम और सादा जानवर है। ये क्या है? हलीम और सादा जानवर। याद रखें कि उस वक्त एक जुलूस जो है वो ये था, खुरूज की किताब उसके 12वें बाब में जो है वहां पर लिखा हुआ है, और वहां पर जिक्र है 10 निसान और 14 निसान का। यहूदियों के कैलेंडर में एक महीना है, उसकी उस महीने का नाम है निसान, उसकी 10वीं तारीख और उसकी 14वीं तारीख। जब ईद फसा जब उन्होंने ईद फसा मनानी थी, जिस बर्रे को काहिने आजम ने ज़िबा करना है, उसको 10 निसान यानी 10 तारीख को उसे जुलूस की सूरत में यरूशलेम में जो है हैकल की तरफ लाया जाता। जिस बर्रे को काहिने आजम ने ज़िबा करना है, यीशु को भी 4 दिन पहले आज जब लाया जा रहा है, पीर, मंगल, बुध,
जमेरात। कितने दिन हो गए? 4 दिन। और काहिन आजम जो है उस बरे को ज़िबा करता था जुमे, यानी कि जुमे के दिन, छठे दिन, जो उनके दरमियान छठा दिन था। यीशु भी जुमे को क्या होगा? अपने आप को कुर्बान करेगा। इसलिए एक जुलूस ये था कि यीशु उन लोगों के साथ आ रहा है जो उस पर ईमान लाए हैं, जो उसे बादशाह मानते हैं, वो नारे लगा रहे हैं। एक जुलूस आ रहा है जिसे यहूदी बरे को लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगले 4 दिन के बाद जो है उसे कौन ज़िबा करेगा। चलो हम तो 10 चुकियां। काहिन आज़म इधर यीशु जो आ रहा है ये भी बरा है। ये किसका बरा है? ऊंचा बोले, किसका बरा है? खुदा का बरा है। वो भी आ रहा है किस लिए? कुर्बान होने के लिए। वो बरे को भी ला रहे हैं, वो उसको भी किसके लिए ला रहे हैं? कुर्बान करने के लिए। उसको कौन कुर्बान करेगा? काहिन आज़म। ये बरा खुद ही बरा है, खुद ही काहिन आज़म है, ये खुद ही कुर्बान होगा। किसके लिए कुर्बान करेगा? अपने लोगों के लिए। इसलिए याद रखें कि जो है वो जिस बरे को काहिन आज़म ने कुर्बान करना, उसे वो 10 निशान को जो है वो जुलूस की सूरत में जो है वो लेके आते थे। क्योंकि मौसम जो है चर्च के अंदर जैसे दाखिल होते हैं मौसम तब्दील हो जाता है, दुखों का बयान पढ़ा जाता है, और दुखों के बयान में हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं, बहुत सारी बातें सुनी हैं, बहुत सारे वाक़यात सुने हैं, क्योंकि ये तलावत लंबी होती है। लेकिन इसमें एक बात फिर मैं चाहता हूँ कि हम लोग रुक जाएं। अगर आपको वो याद है वो बात जो सूबेदार ने कही, जब उसने सारा मंजर देखा तो सूबेदार ने क्या कहा? बेशक ये आदमी रास्तबाज। सब बोले क्या उसने कहा? बेशक ये आदमी रास्तबाज। जो स्कॉलर है वो कहते हैं उस सूबेदार ने बहुत सारे लोगों को सलीब दी है, लेकिन इस बार जब वो सलीब दी गई है और उस शख्स ने ये ऐलान कर दिया या बोला है कि बेशक ये आदमी रास्तबाज था। अगर इसी बयान को हम दूसरी अंजील में पढ़े तो वहां लिखा हुआ है, वो कहता है बेशक ये खुदा का बेटा, या वो कहता है दर हकीकत ये खुदा का बेटा है। तो इसलिए जो है इस शख्स ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए जो स्कॉलर वो कहते हैं इसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये यीशु के दुखों और सलीबी मौत में खूबियां देख सका। क्या देख सका? खूबियां, अच्छाइयां, नेकियां देख सका, जो उसने पहले किसी और की सलीब में नहीं देखी है, यहां वो देख सका है। इसलिए जो है ये देख सका है क्योंकि अगर हम इन सारे दुखों के बयान में कुछ बातों को ध्यान से देखें, आखिरी खाने पर मुकद्दस पतरस की वफादारी क्या ऐलान करता है? क्या वो कहता है? मैं पूरा बोल तोड़ जाऊंगा। हाँ शुक्र है किसे पहनू तो पता है। क्या कहा? सब बोले मैं आखिरी दम या जान देने तक क्या करूंगा? तेरा वफादार रहूंगा। यीशु से क्या कहता है? यीशु ने कहा भाई मोट उधर बांध देगा, लेकिन उससे पहले तो क्या कर देगा? आप देखें जिस दोस्त या जिस करीबी जो रिश्ता है हमें पता चल जाए उसने कुछ देर के बाद मुझे धोखा देना है, उसके साथ खाना खाएंगे? मुश्किल होगा ना। इसलिए जो स्कॉलर है वो कहते हैं देखें उसे पता था कुछ घंटों के बाद ये मेरा इनकार करेगा और दूसरे भाग जाएंगे, उसके बावजूद यीशु उनके साथ खाना खाता है, यीशु उनके साथ यूकरिस्ट मनाता है, यीशु उनके साथ अपनी जिंदगी बांटता है, यीशु ने अपना आप देता है। ये बहुत मुश्किल है कि अपने उन दोस्तों के साथ खाना खाएं जो कुछ घंटों में हमें छोड़ देंगे। यीशु ये कर सका क्योंकि वो दूसरों को प्यार करता है, नाकामियों और गुनाहों और खताओं के साथ। जब वो यीशु को पकड़ने आते हैं, एक शागिर्द ने गुस्से में कुछ कर दिया था। क्या किया था? कान उसने काट दिया। उसने जो लोग पकड़ने आए थे उनके एक का क्या कर दिया? कान काट दिया। यीशु ने क्या किया? यीशु ने बहाल किया। इसलिए
جو اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس صوبیدار نے یہ دیکھا سنا، اسے پتا چلا کہ یہ اپنے دکھوں میں اور اذیت میں بھی کیا کر رہا ہے، شفا دے رہا ہے. بھائی ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے یا ہمیں ہمارے خلاف کوئی زیادہ ہو جائے کیا کرتے ہیں ہم اس کو کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، کہتے ہیں کوئی ایک گال کٹے کی کرنے ہیں، آرام ہی نہیں آتا نا، پھر دو چار کاٹنا نہیں، سکون نہیں آتا نا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو صوبیدار ہے، کیونکہ اس کی صرف بات وہ دیکھ سکا کہ یہ جو ہے اپنے دکھ اور اذیت میں بھی شفا دے رہا ہے. یاد رکھیں کہ جب پیلاطس نے یسوع کو ہیرودیس کے پاس بھیجا، یہ دونوں کی آپس میں دشمنی چل رہی تھی. کیا چل رہی تھی؟ دشمنی چل رہی تھی. جب وہ یسوع کو اس کے پاس بھیجتا ہے، ان آیات کے آخر میں لکھا ہوا ہے وہ آپس میں دوست ہو گئے. کیا ہو گئے؟ دوست ہو گئے. اس لیے یسوع کے دکھ جو ہے، جو اس کی اذیت ہے، وہ دشمنوں کے درمیان صلح کا باعث بن جاتی ہے، وہ ان کے درمیان دوستی کا سبب بننا. حالانکہ خود دکھ میں سے گزر رہا ہے، وہ ٹوٹی ہوئی دوستی کو بحال کر دیتا ہے. یہ یسوع کے دکھ جو ہے، اذیت ان میں سے. جب یسوع اپنی سلیب اٹھا کر لے کے جا رہا تھا، کچھ عورتیں راستے میں جو ہیں اسے دیکھ رہی تھی اور کیا کر رہی تھی؟ رو رہی تھی. تو یسوع کیا کرتا ہے؟ انہیں تسلی نہ، مجھ پر نہ رو بلکہ اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر. شاباش، یہ تسلی دے رہا. اس لیے یہ صوبیدار بھی اس بات سے بھی حیران ہے کہ وہ تکلیف اور اذیت میں ہے، لیکن تسلی دے رہا ہے دوسروں کو. وہ بہت بھاری سلیب کا وزن اٹھا کر جا رہا ہے، مگر پھر بھی رک کر روتی عورتوں کو تسلی دیتا ہے. جب وہ سلیب پر لٹکا ہوا ہے تو وہاں پر معافی کے الفاظ ادا کرتا ہے. کیا ادا کرتا ہے؟ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. کاش کیسی بھی ایسے کہ جائیں نا بڑے دکھوں پر. یہ صوبیدار حیران ہو گیا تھا کہ اس سے پہلے اس نے جتنے لوگوں کو سلیب دی ہے وہ تو معاف ہی نہیں کرتے تھے، بہت برے برے لفظ بولتے تھے، لیکن یہ معاف کر رہا ہے. یہ اس کے دکھ جو ہیں ایک خوبی جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم معاف کرنا سیکھ جائیں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، ہم معاف کرنا جو ہے ہمارے لیے بہت مشکل ہے. کبھی کبھی معاف کر دیتے ہیں نہیں، دل میں بات رکھتے ہیں. اگر ایسا نہیں تو یسوع نے، آپ دیکھیں اپنے جو تعلیم دی، اس نے جو سکھایا، وہ اگر پچھلے اتوار کی اگر تلاوت آپ کو یاد ہے، وہ جو زانیہ عورت کو لے کے آتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کیا کریں، سب کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتھر ہے. جو پتھر باندھ سکتا تھا وہ پتھر مارتا ہے. کون پتھر مار سکتا تھا اس وقت؟ کس کے پاس یہ اختیار تھا جو بے گناہ تھا؟ یسوع. کون بے گناہ تھا؟ یسوع. صرف یسوع اگر چاہتا تو وہ پتھر مار سکتا، لیکن یسوع نے پتھر مارا؟ اسیر پہ مارا. تو بات نہیں آتے. اس لیے یاد رکھیں کہ یسوع اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتا رہا، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، انہیں پیار کرو. وہ صلیب پر اس کا عمل پیش کرتا ہے. یہ بات بھی جو ہے، یہ عمل جو ہے، اس بات نے بھی صوبیدار کو حیران کر دیا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کیسی کس طرح کی اس کی اذیت ہے، اس میں کیا کون سی حیران ہوئی اذیت، دکھ اور حالات سے اپنی باتوں اور تعلیم سے دور نہ کر سکے اسے. صلیب پر ایک ڈاکو یسوع سے درخواست کرتا ہے. کیا درخواست کرتا ہے؟ سب بولیں کیا کہتا ہے؟ تینوں صلیب پر ہیں، ٹھیک ہے، سیم تکلیف ہے، سیم جو ہے وہ پریشانی ہے، سیم اذیت ہے جو ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ شخص کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہ نہیں آئے. تو اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کیا بنا رہا ہے وہ؟ کیا بنا رہا ہے؟ بادشاہ. اس سے پہلے جو نعرے لگا رہے تھے داؤد کے
के बेटे की होशाना, होशाना, दाऊद के बेटे की होशाना, वो नजर नहीं आ रही। ये जो सलीब पर है, ये उसको नजर आ गया कि ये बादशाह के जब अपनी बादशाह में आएगा तो ये मुझे याद कर ले बहुत है। तो यीशु से क्या कहता है, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुद आसमान और जमीन के दरमियान लटका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कसरत से दे सकता है। खुदा ये कर सकता है, कसरत से दे सकता है, और कसरत से उसे देता है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसलिए याद रखिए, खुदा यीशु मसीह अपने दुखों में हमें सिखाता है दूसरों को प्यार करना, उनकी कमजोरियों के साथ, उनकी खताओं गलतियों के साथ। इसलिए यीशु जो है अपने दुखों में हमें सिखाता है हम सुलह करवाने वाले बने। उसने अपने दुखों में किसकी सुलह करवाई थी, किसकी, हेरोदेस और पिलातुस की। सही, हम अपने दुखों में वो हमें सिखाता है कि दूसरों को तसल्ली दें। किसको उसने तसल्ली दी थी, औरतों को तसल्ली दी। अपने दुखों में वो हमें सिखाता है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करें। किसके लिए उसने दुआ की, क्या दुआ की थी, नहीं जानते कि क्या करते हैं। अपने दुखों में वो सिखाता है कि हम हमेशा सखी बने। ये सब देखने के बाद वो सूबेदार कहता है, क्या कहता है, बेशक ये शख्स रास्तबाज, क्योंकि उसने ये सब बातें जब उसके दुखों में ये देखी हैं, जिससे उसने उसे हैरान कर दिया, तो उसने कहा बेशक ये शख्स रास्तबाज है। खुदावंद हमें दुखों में, तकलीफ में, परेशानियों में जो है वो दूसरों को प्यार करना, तसल्ली देना, सुलह कराना और दूसरों पे दुआ करने की तौफीक दे। हमसे हमारे खुदावंद के वसीले से